Hi students, today we are going to study a new chapter in English, chapter number 8, Saving the Tiger, written by Shekhar Dattadri. He is an award-winning wildlife filmmaker and a conservationist. Conservationist means a person who protects environment and wildlife. He has written 3 children's books and a number of articles on conservation, वाइल्ड एंड फिल्म मेकिंग. ये बच्चों के लिए 3 बुक्स लिखा बना इन्होंने एंड बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स इन्होंने बना कर रखा है सब्जेक्ट कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ एंड फिल्म मेकिंग. In this chapter, that is Saving the Tiger, the writer is telling us about his own experience with the tiger. And this chapter will also tells us about the methods to conserve the tiger and to save our wildlife. So let's start. I was 19 when I saw my first tiger in the wild, and it was very big as thrilling as I had imagined. Now the writer has been first of all seen a tiger in his life at the age of 19. It was every bit as thrilling as I had imagined. It was a very thrilling experience for that writer. And I was in Kana Reserve, Tiger Reserve in Madhya Pradesh, seated on a young tame elephant that was barely 6 feet tall. Where was the writer? He was in the Kana Reserve in Madhya Pradesh, and he was seated on a young tame elephant. एक छोटी सी एलिफेंट के ऊपर बैठा था. And the elephant and its teenage Mahat were being trained to track tigers by more experienced trackers on much bigger elephants. Mahat means elephant को control करने वाला आदमी. And this elephant is being trained, elephant and ये Mahat being trained to track tigers. मीन्स इनको टाइगर का लोकेशन पता लगाने का ट्रेनिंग मिली थी ये महत को. किसके द्वारा? बाय मोर एक्सपीरियंस्ड ट्रैकर्स के द्वारा. आई सैट बिहाइंड द बॉय महत एंड हंग ऑन टू ए रॉक फॉर डियर लाइफ as the elephant struggled up a steep slope amidst thick bamboo. ये राइटर ये बॉय महत के पीछे बैठा था एलिफेंट के ऊपर एंड टाइटली and he was holding the rope tightly that he could not fall down from the back top of the elephant. ये एक हिली एरिया था, ऊपर चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम थी. सो धीरे धीरे ये एलिफेंट ऊपर की तरफ जा रहे, सो नीचे गिर जाएगा, इसलिए तो पकड़ के बैठा था वो राइटर. एंड सडनली ये फ्लैश ऑफ ऑरेंज कॉट बाय मी. एक सडनली राइटर को एक ऑरेंज कलर का चीज़ देखा था. There, beside the narrow path, sat a handsome young tiger. हम पर वो सड़क के साइड पर एक हैंडसम यंग टाइगर को देखा था राइटर ने. There, for a heart-stopping moment, our eyes met in mutual surprise. Heart-stopping moment means सांस रुकने वाला moment. Our eyes meet in mutual surprise. It was a very surprise moment for the writer. The tiger was so close that it could have easily leaped into our elephant and pulled us down, but just sat there calmly looking at us with curiosity. टाइगर को आराम से एलिफेंट के ऊपर तक पहुँच कर अपन को पकड़ सकता है, बट he did not do anything, and the tiger was sitting there calmly. Then, as my elephant gave a heave and climbed to the top of the slope, the orange cat disappeared from the view. बहुत मुश्किल से हमारी एलिफेंट ऊपर तक चढ़ के अभी हिल के ऊपर आ गया. सो ये कैट को अभी, कैट मीन्स दैट टाइगर को अभी दिखता नहीं है, तो पीछे रह गया. Since that day, several decades ago, decades means 10 years का एक पीरियड ऑफ टाइम है, I have had many close encounters with wild tigers during my career as a wildlife filmmaker, but that first glimpse will always remain special. उसके बाद हमारे राइटर वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर बन गया, बहुत बार टाइगर से एनकाउंटर हो गया, बट
जो इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था टाइगर को देखने का, वो उनको हमेशा याद था. Despite its status as our national animal, the tiger is highly endangered and less than 2000 survive in our forest. Now the writer wants to tell us about the reality of the tiger in India. We all know that tiger is our national animal, but इनके बाद भी वो endangered है, मतलब ये एनिमल डिसअपियर होने वाली है धरती से. Now only less than 2000 tigers survive in our forest. According to Dr. Ullas Karanth, a leading tiger expert, India's forest can easily support 3000 more tigers if we do the right things. This requires understanding what tigers need in order to survive and taking determined steps to remove the threats they face. According to Dr. Ullas Karanth, he is a leading tiger expert. वो ये कहते हैं हमारी इंडिया में इतनी बड़ी फॉरेस्ट है, इनके अकॉर्डिंग प्रे भी है, देन आराम से 3000 मोर टाइगर भी सर्वे कर सकता है हमारी जंगल में. सो टाइगर के संख्या को बढ़ाने के लिए हमारे देश में टाइगर का शिकार करना बंद कर देना चाहिए, जिससे टाइगर की संख्या बढ़ सकती है. Most of us are aware that tiger poaching is a major threat. Poaching means hunting. Illegal hunting of tiger is a very big problem. And every part of the tiger, be it skin, bones or body parts, is in high demand in China and parts of Southeast Asia. चाइना में एंड साउथ ईस्ट एशिया की कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है टाइगर्स का बॉडी पार्ट्स एंड स्किन बोन जैसे कुछ प्रोडक्ट्स को. एंड वेयर द स्किन इज़ यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस, वो लोग डेकोरेशन के लिए स्किन यूज़ करते हैं टाइगर का. एंड बोन्स एंड बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड एज इंग्रेडिएंट्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन. कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए इनका इंग्रेडिएंट्स के जैसे यूज़ करते हैं इनका बॉडी पार्ट्स एंड बोन्स. ऑल्दो देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ द एफिकेसी of tiger products in treating illness, deep-rooted superstitious beliefs fuel the increasing demands. There is no evidence, जैसे कुछ एविडेंस नहीं है ये टाइगर के बॉडी पार्ट्स यूज़ करके मेडिसिन बना रहे, ये कुछ बीमारियों के लिए एफिशिएंट है, जैसे कुछ प्रूफ नहीं है. फिर डीप रूटेड सुपरस्टिशियस बिलीव्स फ्यूअल द इंक्रीजिंग डिमांड, जैसे कुछ अंधविश्वास है, सुपरस्टिशियस बिलीफ है इनके बारे में, इसलिए ये लोग टाइगर का बॉडी पार्ट्स यूज़ करके मेडिसिन बना रहे. विथ टाइगर्स हैविंग बीन ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन इन मोस्ट अदर एशियन कंट्रीज, आवर नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुरीज हैव बिकम द मेन टारगेट ऑफ पोचर्स. अब एशियन कंट्रीज़ का और अदर एशियन कंट्री में बहुत ज़्यादा कम हो गया टाइगर का नंबर. सो पोचर्स का टारगेट हमारी इंडिया की नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुरीज है. टू अदर फैक्टर्स वर्सन द इम्पैक्ट ऑफ टाइगर पोचिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड द पोचिंग ऑफ प्रे एनिमल्स. और 2 फैक्टर्स है टाइगर को फेस करने के लिए, टाइगर का नंबर कमाने के लिए, दैट इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड द पोचिंग ऑफ प्रे एनिमल्स. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मीन्स टाइगर जहाँ रहते हैं उधर उनको डिस्टर्ब करते हैं, जैसे पेड़ काटते हैं, जंगल काटते हैं. देन प्रे एनिमल्स को शिकार करते हैं लोग, इनके वजह से टाइगर को भोजन के लिए कमी होती जा रही है. Several hundred years ago, most of India was clothed in forest. कई साल पहले इंडिया में बहुत फॉरेस्ट थे, and tens of thousands of tigers roamed the length and breadth of the country. इतनी सारा फॉरेस्ट था, इसलिए बहुत ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स था, इनके साथ टाइगर भी था बहुत ज़्यादा. बट as the human population increased and agriculture expanded, the forests were felled. डे बाई डे ह्यूमन पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हो गया, इनके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चरल एरिया में भी इंक्रीज़ हो गया. सो फॉरेस्ट को काट दिया गया टू सच एन एक्सटेंट दैट टुडे tigers are confined to the green islands we call national parks and sanctuaries.
एट दिस टाइम टाइगर्स आर कलेक्टेड टू द ग्रीन आइलैंड्स, मतलब सारे कलेक्ट हो गया ग्रीन एरिया पे, कि ग्रीन एरिया को कहते हैं नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुरीज. अनदर थ्रेट एंड वन दैट ऑफन गोes unnoticed is the rampant poaching of prey animals by people living around our nature reserves. एक और प्रॉब्लम है टाइगर को फेस करने के लिए, दैट इज़ द rampant poaching ऑफ prey animals. prey animals को हंटिंग करते हैं, अनकंट्रोल्ड हंटिंग करते हैं बाई पीपल लिविंग अराउंड आवर नेचर रिसर्व्स. हमारी फॉरेस्ट के आसपास बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और लोग बहुत ज़्यादा छोटे छोटे एनिमल्स को हंटिंग करते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है हंटिंग को. यूजिंग ए वेराइटी ऑफ मेथड्स इंक्लूडिंग snails, traps, guns, arrows and poison, huge numbers of deer, birds and other animals are illegally hunted by people for meat. इनके लिए वो लोग बहुत ज़्यादा हम मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे स्नेक्स, ट्रैप्स, गन्स, आरोज एंड पॉइसन. ह्यूज numbers of deer, birds and other animals are illegally hunted by people for meat. जैसे छोटे छोटे बहुत ज़्यादा एनिमल्स को उन लोग हंटिंग करते हैं खाने के लिए. When prey becomes scarce in the forest due to hunting, it affects the tiger population. जैसे प्रे एनिमल्स को कमी आ रही है उसी टाइम हंटिंग की वजह से ये टाइगर पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. एंड ए टाइगर्स दैट कैन raise 4 cubs in a forest with abundant prey may not be able to raise even 1 cub successfully in a forest where prey is scarce. एक टाइम एक टाइगर्स कम से कम 4 कब्स को बर्थ देते हैं. अगर प्रे बहुत ज़्यादा है इसी टाइम ये सबको सर्वाइव कर सकता है फॉरेस्ट में, बट it may not be able to raise even 1 cub successfully in a forest where prey is scarce. अगर prey इतनी कमी है, एक के लिए भी पर्याप्त नहीं है फॉरेस्ट में. And if no new tigers get added to the population and if the ones present are hunted, the tigers in that forest will soon go extinct as they have in some of our reserves. जैसे टाइगर्स का संख्या कम आ रहे एंड लोग हंटिंग भी करते हैं टाइगर को, सो फॉरेस्ट में से टाइगर जल्दी ख़त्म हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, इट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.